A very pleasant evening to all the dignitaries, students, and esteemed attendees, and a very special and warm welcome to our eminent speaker and a global leader, Mr. Anil Bhasin, former President, Havels India Limited, to the Leadership Summit Momentum 2020. This leadership summit aims to inspire, engage, and help budding leaders to make a difference locally, regionally, nationally, and globally. With due permission from Honorable Vice Chancellor, Sir, I, Kunal Srivastava, Assistant Professor at Amity University, Patna, take this pleasure and honor to welcome you all to the last session of the summit, last of the day. This truly is going to be an opportunity to access a wealth of leadership insights from a leader par excellence. Our eminent speaker, Mr. Anil Bhasin, recently got superannuated from the position of President, Havels India Limited, a rupees 10,000 crore super brand, and has successfully served the FMEG sector of the Indian economy for over 3 decades. He's a proud recipient of prestigious awards like Lifetime Achievement Award by Amity University, Brick of Change Award by Mr. Amitabh Kant, Niti Aayog, Marketing Role Model Award by Top Rankers, Amity Leadership Award for Corporate Excellence, and Entrepreneur Excellence Award of the Year. In his second innings, being a motivational speaker, life coach, and a guide, he understands that the positivity gives power to swim upstream and to rewrite one's own scripts. In other words, in an environment where competition is high and life is stressful, it is important to trust your team and give them independence to work. So, may I take this opportunity to invite our esteemed guest speaker, achiever, enabler, and a motivator par excellence, Mr. Anil Bhasin, to take the deliberations further. Thank you. Thank you, Kunal, for kind words. Thank you, Vivekanand, for giving me this opportunity to share with the students of Patna. Patna has been very close to me because I have been to Patna a number of times for our internal conferences, and the people of Patna were more generous to take care of me at that point of time, and that let me. I'll share certain things which you have not been taught into the MBA classes or into the professional career. And let me tell you, ABC of human life. That is the kind of thing. I'll speak for close to around 35 to 40 minutes. And let me assure you that I'll not bore you. I'll have a presentation, but I'll keep you alive. You see, we in the ABC, what we have been taught, apple, ball, and the other things and all. Let me tell you, A stand for attitude. Most of the people get confused with the word attitude. And let me tell you, the meaning of attitude is flow of thought at any point of time in your mind. Could be positive or could be negative. And positive attitude does not guarantee you for any success. Positive attitude with proper action increases the probability of success. I will once again repeat. Positive attitude with proper action increases the probability of success, does not guarantee you for any success. Why I say you, unless you do a proper action, nothing is going to happen. See, India has got a population of 130 crores, but how many people go and win the Olympic medal is very few people, those who go, because we don't do the things in a proper way. And at times we have been taught in our Hindi courts कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. आई थिंक ये कोटेशन को थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा. कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है. जितने लोग अभी सुन रहे हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि मोटिवेशनल सेमिनार नहीं होता, ये इंस्पिरेशनल सेमिनार है. आई कांट मोटिवेट यू, आई कैन ओनली इंस्पायर यू टू मोटिवेट योरसेल्फ. तो कुछ ना कुछ जब तक आप प्रॉपर एक्शन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला. वो जो चीज़ जहाँ पे पड़ी है वहीं पे पड़ी रहेगी अगर आप उसको फोर्स लगा के लॉ ऑफ इनर्शिया के थ्रू पुश नहीं करेंगे. बी स्टैंड फॉर सेल्फ बिलीफ. देखिए, इस तरह के सुबह से मैं देख रहा हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक ये चल रहा है. काफ़ी लोग थक भी गए होंगे, बोर भी हो गए होंगे, क्योंकि मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे 4 घंटे था, फ्रॉम 11 o'clock to 3:30. तो काफ़ी टाइम कंप्यूटर पे सुनना भी बड़ा बोरिंग हो जाता है और कई बार ऐसा टीडियस भी हो जाता है. तो यू विल हैव टू हैव अ सेल्फ बिलीफ कि इस पैंडेमिक के टाइम पे आपको खुद बाउंस बैक करना है. एंड लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन गुड टाइम्स एंड दी चैलेंजिंग टाइम्स. जब आप गुड टाइम्स में होते हो तो आप हैप्पी होते हो, जब हैप्पी होते हो तो लेजी होते हैं, डिसिप्लिन होते हो. जब आप गुड टाइम्स में होते हो तो आप लव्ड होते हो, आप पैम्पर्ड होते हो. गुड टाइम्स में सक्सेस आता है तो ईगो आ जाती है, मैं ही कर सकता हूँ. गुड टाइम में कॉन्फिडेंट होते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं.
गुड टाइम में हार्मोनियस रिलेशनशिप होते हैं सबके साथ में, तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं। गुड टाइम पे आप हेल्दी होते हो तो पिज़्ज़ा बर्गर सब खाते हो। बट चैलेंजिंग टाइम्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आज के टाइम है। देखिए, पेंडेमिक किसी ने मांग के तो मांगा नहीं। 1918 और 1919 में पेंडेमिक हुआ था। जो लोग 1900 में पैदा हुए होंगे उनके लिए कितना चैलेंजिंग था कि पहले वर्ल्ड वॉर देखा 1914 से 1918 तक, फिर पेंडेमिक देखा, फिर 1930 में वर्ल्ड रिसेशन आया, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा हमारे एज के टाइम में लोगों को। चैलेंजिंग टाइम्स आर ऑलवेज गुड, बिकॉज चैलेंजिंग टाइम्स में यू डू ए प्रेयर टू द गॉड, यू आर मोर हम्बल, यू टेक एक्स्ट्रा केयर, यू गिव योर बेस्ट एंड यू ट्राई टू बाउंस बैक। जो मैंने कहा था, आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। देखिए, जब तक आप में सेल्फ बिलीफ नहीं होगे, what I mean to be tell you about self belief is that you have to have a will power to bounce back. मोहम्मद अली एक बार रिंग में गिर गया था। उसने कहा मेरी स्किल जो है ऑलरेडी धरी धरा ही रहेगी, क्योंकि स्किल तो मेरी ऑलरेडी किसी ने ले ली मेरे को नीचे गिरा के। अब मेरी विल पावर है, जब तक मैं बाउंस बैक नहीं करूंगा 1 2 3 रेफरी कहेगा और मैं आउट करार कर दिया जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए हमारे। जैसे हम गॉड में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। कहीं ना कहीं हमारे में एक आस्था होनी चाहिए, एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं उस दिन गीता का एक पढ़ रहा था। गीता ने बड़ी सिंप्लीफाइड एंड द बेस्ट मोटिवेशनल बुक इज बेसिकली गीता। मैं धर्म के हिसाब से नहीं कह रहा कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो गीता पढ़ें, पर अगर आप एक अच्छे लर्नर हैं तो आप गीता को एक एज ए लर्नर भी पढ़ सकते हैं। और गीता ने 3 चीजें बहुत क्लियर करी है। पहली थिंग है कन्फ्यूजन। देखिए, आज भी जो बच्चे यहाँ पर हैं उनको कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन तो हमारे यहाँ 10वीं से शुरू हो जाता है कि साइंस लें या आर्ट्स लें, साइंस लें तो मेडिकल लें या नॉन मेडिकल लें। और जो पेरेंट्स कहते हैं, जो हमारे साथ के बच्चे कर रहे होते हैं, वही करना शुरू कर देते हैं कि भैया या तो इंजीनियरिंग में जाना है या फिर मेडिकल में जाना है। और जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं जाते, आर्ट्स में आ जाते हैं, उनको कैटेगरी बी डाल दिया जाता है कि भैया ये लोगों में शायद दिमाग कम है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि जो साइंस पढ़ते हैं वही शायद इंटेलिजेंट होते हैं, जो आर्ट्स वाले होते हैं वो शायद उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उन्होंने वो रिजर्व में रखा होता है दिमाग अपना यूज़ करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे को कंफ्यूजन है। मैं गीता पे दोबारा आता हूँ। गीता में 3 सी में क्लैरिफाई हो जाता है, कंफ्यूजन, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। देखिए, कंफ्यूजन हम सब में होता है। तो आज अर्जुन में भी कंफ्यूजन था कि मैं लड़ाई लड़ूं या नहीं लड़ूं। लॉर्ड कृष्ण ने क्या किया, पूरे के पूरे अध्याय में उसका कंफ्यूजन दूर किया, उसको क्लैरिटी दी कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तुम लड़ाई लड़ो या नहीं लड़ो, उन्होंने ये क्लियर किया कि तुम्हारे लिए क्या सही है करना, और फिर उसको कॉन्फिडेंस दिया कि तुम कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, करण वॉज ए बेटर वॉरियर देन अर्जुन, बट वाई दी अर्जुन वॉन वॉज बिकॉज उसके पीछे उसका जो गुरु था वो ज़्यादा अच्छा था, उसको शिक्षा देने वाला सही था कि क्या सही है क्या गलत है। हालांकि करण का गुरु जो है वो खाली उसको गलत बातें बता रहा था, पर करण ने भी अपनी दोस्ती पूरी निभाई कि उसने कहा कि अगर दोस्ती निभाई है तो जो भी गलत है उसको, ऑल्दो रिजल्ट पता था कि क्या होने वाला है, पर फिर भी उसने कहा कि अगर दोस्ती निभाई है तो उसको एंड तक ले जाना चाहिए। तो आज के टाइम पे आई थिंक, जो मैंने कॉन्फिडेंस की बात करी, हमारे में कंफ्यूजन है, वो आपके पास में गुरु होते हैं, मेंटर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, और उसके बाद में क्लैरिटी आती है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। सी का मतलब होता है कहीं ना कहीं हमारे में जो है ना, वो जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे में क्यूरियोसिटी होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो क्यूरियोसिटी हमारी खत्म हो जाती है। जब हम बच्चे होते हैं तो पूछते हैं चिड़िया क्यों उड़ती है, स्काई ब्लू क्यों है, ओशन इतना बड़ा क्यों है, और ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपने दादा दादा से, नाना नानी से, जो कि हमें नहीं पता होता। हम उस कंफ्यूजन को क्लियर कर रहे होते हैं। पर कहीं ना कहीं जब हम बड़े होते हैं तो हमारे में वो क्यूरियोसिटी खत्म होती जाती है। हमें ये बोल दिया जाता है कि नहीं, तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तुम ये बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो हम चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं और जज करना शुरू कर देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उसी के बीच में सारे में कहीं ना कहीं ज़िंदगी फंसी रहती है। तो आई थिंक क्यूरियोसिटी जो है हमारे में होनी चाहिए। जो बच्चा जो है ना, एक मन में अंदर है, वो होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स को पहले ही शटर कर दिया जाता है। वो कहते हैं हादसों के शहर में हादसों से डरता है, मिट्टी का खिलौना है फना होने से डरता है। फना मतलब टूटने से। कहते हैं हादसों के शहर में हादसों से डरता है, मिट्टी का खिलौना है फना होने से डरता है, मेरे दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख ये दुनिया बड़ा होने से डरता है। कहीं ना कहीं जब हम स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से बाहर निकल रहे होते हैं तो हमें डर लगता है कि यार ये बड़े क्यों हो रहे हैं, अब हमें नौकरी करनी पड़ेगी, अब हमें शादी करनी पड़ेगी, अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम बच्चा रहना चाहते हैं।
देखिए हर आदमी के बीच में एक बच्चा रहता है, जब तक वो मरता नहीं है उसके अंदर एक बच्चा रहता है जिसको हम दिल कहते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जो भी चीजें हैं हमारे को दिल से ही करनी चाहिए। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल? एक ही डिफरेंस है कि ह्यूमन बीइंग हैज द एबिलिटी टू थिंक। उसी एनिमल जो हैं वो भी क्रिया करते हैं, वो भी बच्चों को पालते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, पर एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक कर्म कर सकते हैं, हम एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, हम एक दूसरे में शिक्षा बांट सकते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं अगर हमारे में कुछ है। एनिमल जो है किसी की हेल्प नहीं कर सकते। एनिमल जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, बट ह्यूमन बीइंग अपना एनवायरनमेंट खुद चूज करता है। आज हम सब घरों में बैठे हैं, हम सब फॉर्चुनेट हैं कि हमारे ऊपर छत है, 2 टाइम का हम खाना खा रहे हैं और हमारे पास में बिजली पानी की एक सुविधा है जिसके लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। रोटी कपड़ा मकान हमारे पास में है और ज्ञान के लिए हम ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। और अमेठी को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी वर्ल्ड वाइड इतने बड़े इंस्टीट्यूट बनाए। देखिए छोटे लेवल पे काम करना बहुत आसान रहता है, पर इतने बड़े स्केल पे इतनी जगह पे जाके यूनिवर्सिटीज़ को बनाना, टैलेंट को एक्वायर करना और टैलेंट के साथ में लोगों को शिक्षा देना एक बहुत बड़ा काम है। तो चौहान फैमिली ने जो एक बहुत अच्छा काम किया है। मेरे तो ऑफिस के पास थे तो आई हैव बीन टू अमेठी नंबर ऑफ टाइम्स, तो तभी उन्होंने शायद मैं जितनी बार गया हूँ इसीलिए उन्होंने मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दे दिया और भी 1-2 अवार्ड दे दिया। तो कुछ लोग कहते हैं यार अब अमेठी की तो पैट्रनेज पे हो। मैंने कहा नहीं, मैं सभी के लिए हूँ, ऐसा नहीं है कि अमेठी के लिए हूँ मैं खाली। तो देखिए एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव द ड्यूटी ऑफ डूइंग कर्मा। बट फिर जैसे मैं आता हूँ, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, मैं उसको लगाता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके लिए। उसको देख के समझना तो थोड़ा आसान है, पर बीच बीच में मैं आपको लाइव रखूंगा, जो डोंट वरी। और प्रेजेंटेशन शेयर करने की आप मेरे को ऑथराइज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। You have rights. यू हैव राइट? Yes, sir. ओके, यस आई कैन सी नाउ। दिख रही है प्रेजेंटेशन सबको? Yes. मैं मिनिमाइज कर देता हूँ अपने आप को ताकि मैं अपनी शक्ल ज्यादा ना देख सकूं। देखिए मैंने आपको कहा ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच में एक ही डिफरेंस है, एबिलिटी टू थिंक। और जो भी हम सोच सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसको कर सकते हैं। आई थिंक कर्म कर सकते हैं हम, एनिमल्स क्रिया करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो लोग अभी इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। देखिए फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। सो कई लोग इसे समझते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो हम कहीं ना कहीं, अनफॉर्चुनेटली आप 14 साल स्कूल में जाते हैं, 6 साल कॉलेज में जाते हैं, आप कभी फेल नहीं हुए। यू हैव अ फ्रीडम टू फेलियर। और लाइफ में जितनी बारी अब आप फेल होंगे वो बहुत बारी होंगे, 10 में से मैं कहता हूँ 8 बारी आप फेल होंगे। एंड फेलिंग का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। देखिए गूगल के सीईओ जो सुंदर पिचोई हैं, उनसे एक बारी किसी ने पूछा था, वो एक फोरम में ऐसे ही वेबिनार में पूछा था कि जिस कैंडिडेट को आप अपॉइंट करते हैं जिसकी सैलरी 10 करोड़ से ज़्यादा होती है, उससे आप क्या क्वेश्चन पूछते हैं? तो सुंदर पिचोई ने कहा था कि जो कैंडिडेट मेरे पास आता है जिसकी सैलरी 10 करोड़ से ज़्यादा होती है, वो ऑलरेडी 6-7 राउंड के इंटरव्यू करके आ चुका होता है। मेरे पास जब आता है तो मैं उससे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइफ में कितनी बार आप फेल हुए और कितनी बार आपने उस फेलियर को हैंडल किया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फेल होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्स टू द फेलियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए लाइफ में जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन reacting to that situation. So failure is not the opposite of success, failure is a part of success. और कई बार हमारे को fear होता है कि यार क्यों मैं ये काम करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। Never have that fear. You see 75% of the snakes are non-poisonous. People die because of heart attack, not because of the snake bite. So कभी भी कोई डिसीजन लेने के लिए fear मत करिएगा। जैसे मैंने कहा था कि ड्रीम्स, आई थिंक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था मोस्ट ऑफ द पीपल डाई एट द एज ऑफ 25 और 30, बट दे आर एक्चुअली बरीड एट 75 और द ईयर दे डाई बिकॉज दे स्टॉप ड्रीमिंग। जैसे मैंने पहले कहा था कि कहीं ना कहीं हमारे को विजुलाइज करना, इमेजिनेशन करना, एक मिडिल क्लास फैमिली में हमारे को पुश कर दिया जाता है कि नहीं आप लाइफ में सेटल हो जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटल इन अ मिडिल क्लास फैमिली? इज आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो और उसके बाद नौकरी कर लो। आई थिंक बिहार से जो लोग हैं वो तो वहाँ तो एबीसी के बाद सिखाया जाता है यूपीएससी कि गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए तो सेटल हो जाओगे। और गवर्नमेंट की जॉब भी कितने लोगों को मिलेगी? मैंने टीवी पे कई बार सुना है, जो भी प्रोग्राम आते हैं कि जॉब्स नहीं है। अभी बिहार इलेक्शन भी हुआ, उसमें भी लोगों ने बहुत वादे किए, पर कितने वादे वो पूरे होते हैं। तो सेटल होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स को लिमिटेड कर दो। आई थिंक सेटल होने का मतलब ये है कि लाइफ तो आपकी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है,
आपको उसमें चलना ही पड़ेगा। तो कभी भी अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को कभी भी शटर मत करिएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे पास में काफ़ी साल राज किया और उनका उद्देश्य हमारे पे राज करने का एक ही था कि हम लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, और दूसरा ये कि हमें आंसर येस या नो में देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश आना जरूरी है, पर इंग्लिश आना ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आती है तभी आप कुछ कर सकते हो। आई थिंक बिहार में आपके पास में वो एक और भी एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सुपर 30 पढ़ाते हैं, वो हिंदी मीडियम के बच्चों को लेते हैं और फिर उन्हीं को आईआईटी में भी वो सक्सेसफुल कराते हैं। आई थिंक ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश आपको ठीक ठाक आती है तो आप उससे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज अ स्किल, आपकी कम्युनिकेशन सही होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारे को स्कूल कॉलेज में भी हैंडलिंग फेलियर जो है वो नहीं सिखाया जाता, और हमारे को ऑब्जेक्शन नहीं हैंडल करनी दिखाई जाती। हमें बोला जाता है आंसर यस या नो में देना। मैं कई बार जब लाइव सेमिनार करता हूं तो बोलता हूं कि जो फ्रंट रो के बच्चे होते हैं उनको पता होता है आंसर कितना आसानी से जल्दी से देना है, इसलिए हम बहुत उतावले होते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर को देने में। और फ्रंट रो के बच्चों को दे नो आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, बट द बैक बेंचर्स नो हाउ टू हैंडल ऑल द फेलियर्स और ऑल द प्रॉब्लम, बिकॉज बैक बेंचर्स ने वो प्रॉब्लम को हैंडल किया होता है। तो हमारे पास लाइफ में कई चीजें ऑब्जेक्शन के तौर पे आती हैं, ना कि क्वेश्चन के तौर पे आती हैं कि हम उसको यस या नो में जवाब दें। टुडे वी हैव गॉट गाइडेड मिसाइल्स बस मिसगाइडेड पीपल। देखिए, सेल्स में अगर आप हैं और कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि योर प्राइस इज एक्सपेंसिव, तो ये ऑब्जेक्शन है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आप ये नहीं दे सकते कि मेरा प्राइस महंगा नहीं है। अगर वो कहेगा नहीं है तो आप जाके चेक करो, और अगर आप कह दोगे कि मेरा प्राइस महंगा है तो वो कहेगा कि आप इसको डिस्काउंट दीजिए। उसने जो ऑब्जेक्शन है आपको दिया, आपको इसको कैसे हैंडल करना है, पहली बात है कि आप उसकी तरफ जाइएगा। यू हैव टू टेल आई अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिपीट इट वंस अगेन, बिकॉज 14 साल आपने और 20 साल आपने क्वेश्चन आंसर यस या नो में दिया है। अब आपको ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। यू हैव टू से आई अंडरस्टैंड प्राइस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन टेकिंग दिस डिसीजन, but let me tell you about my quality after sales service and other features, and then you can decide whether you want to buy from me or not. So you have handled this objection by telling your quality and after sales service, and you have to go toward his side that I understand price is one of the important criteria and not the only criteria. And let me tell you, in sales price matters only 13% in decision taking. Balance all is the quality and the after sales service of the product category which you are dealing. See, all these people, you all know, these were the founders of the computer company, whether Bill Gates, Steve Jobs, or Michael Dell, or even Facebook, if you see. But these people all were college dropout. I am not asking you to drop out from college, but they all created history. They all became billionaires. These were some of the foreigners, but let me share you some of the photographs of Indian. Dhirubhai Ambani, Mr. Oberoi, or Mr. Munjal, Sachin Tendulkar. There are many examples of those who had little formal education, but they created history because they believed in relationship and they were trusted. You can't be the best or the expert in any field, but you will be trusted authority. Whatever you should say, people should believe you. The most spoken word after the word I is love. But let me tell you, if you love someone and don't trust him, it's not the true love. But if you trust someone, slowly and gradually you will start loving that person. तो कहीं ना कहीं हमारे को ट्रस्ट जो है वो बहुत जरूरी होता है। आज भी ब्रांड का जो है, बिस्लरी की बोतल के ऊपर से आप बिस्लरी का रैपर उतार दो तो आप वो पानी को बेच नहीं सकते, क्योंकि ट्रस्ट नहीं रहेगा उसमें, लोगों को शक रहेगा कि ये पानी में कुछ ना कुछ मिला हुआ है। और एक बड़ा सोचने के लिए मैं आपको बोलूंगा, यू शुड थिंक बिग एंड एक्ट फास्ट। देखिए, डिक फॉस्बरी की एक पिक्चर है जो आप देख रहे हैं, हाई जंप मारी जा रही है उल्टी तरीके से। 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स में डिक फॉस्बरी ने हाई जंप करी थी 7 फीट 4.5 इंच, 7 फुट 4.5 इंच। उसकी खुद की हाइट 6 फुट 5 इंच थी। एक आदमी जिसकी हाइट 6 फुट 5 इंच है, वो 7 फुट 4 इंच की जंप कैसे मार सकता है? वो जंप ऐसे ही मार सकता था क्योंकि उसने उल्टी जंप मारी थी, उसने कुछ ना कुछ उल्टा सोचा था। देखिए, जितनी भी कंपनीज बनी हैं वो सोच से बनी है। आज भी इस तरह की जंप को फॉस्बरी फ्लॉप कहा जाता है, क्योंकि जब आप उल्टी जंप मारते हैं आपका घुटना डंडे के साथ नहीं अटकता। अगर आप सीधी जंप मारेंगे तो आपका घुटना अटकेगा, आप घुटने को मोड़ नहीं सकते और घुटना आपका डंडे को साथ में नीचे ले जाएगा, इसलिए उसने उल्टा सोचा। आज देखिए, अमेजोन हो, चाहे ओयो हो, चाहे उबर हो, चाहे गूगल हो, ये सब जो है कहीं ना कहीं सोच से बनी है। वो कहते हैं कोयल अपनी कूक से
खेत अपने उपज से, पेड़ अपने फल से, इंसान अपनी सोच और कर्मों की वजह से जाना जाता है। देखिए कमल का फूल जो है वो लगता तो कीचड़ में है, पर कहीं ना कहीं वो हरी की शीश पे चढ़ाया जाता है क्योंकि उसके गुण होते हैं। आप कहीं से भी आए हैं, चाहे छोटे शहर से आए हैं, छोटे गांव से आए हैं, छोटे कॉलेज से आए हैं, छोटे स्कूल से आए हैं, पर आप आए आज अच्छी यूनिवर्सिटी में हैं। आप ये लेके चलिए कि आज के बाद आपका जो आप, इफ योर माइंड कैन कंसीव इट, ये नेपोलियन हिल ने कहा था, इफ योर माइंड कैन कंसीव इट एंड योर हार्ट कैन बिलीव इट, आई एम श्योर यू कैन अचीव इट। कहीं ना कहीं मन और दिल का रिश्ता होना चाहिए। देखिए मन कई बारी दिमाग कई बारी चीजें सोचता है, पर जब तक आपका दिल गवाही नहीं देता तब तक कुछ नहीं होता। देखिए एक होता है रैशनल माइंड और एक होता है इरेशनल माइंड। रैशनल माइंड जो है वो सब चीज सिक्योर डिसीजन लेता है, और पर इरेशनल माइंड जो अंदर का होता है, जिसको कहते हैं दिल कहते हैं, दिल जो है कुछ बात नहीं करता, वो खाली उन्हीं बातों से फीलिंग देता है जहाँ पे उसको लग रहा होता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। और आइडिया किसी की मोनोपोली नहीं है कि वो अमीर आदमियों के पास ही आ सकता है। इफ यू हैव एन आइडिया, मनी विल फॉलो यू। कुछ लोगों को लगता है कि पैसे से व्यापार होता है। आई थिंक छोटी छोटी कंपनियां, अमेजोन जो है गैराज से शुरू हुई थी जहाँ पे वो बुक सेल करते थे और उनके पास में एक टेबल नहीं था बुक को पैक करने के लिए। तो आज अमेजोन अगर हमारे घर घर में आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक आइडिया था। तो ये ओयो हो गया, उबर हो गया, चाहे गूगल हो गया, ये आइडिया से बनती हैं कंपनियां, ना कि पैसे से बनती हैं। पैसा तो बहुत लोगों के पास है जो लोग खराब करते हैं। देखिए ह्यूमन माइंड वर्क्स विद द इमोशन। 70% डिसीजन हम इमोशनल लेते हैं और 30% डिसीजन हम लेते हैं विद द फैक्ट्स एंड फिगर जो हमारे पास में पता होती है। अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती तो हमारे को गुस्सा आता है। आज पैंडेमिक में हमें लग रहा है कि हम घर पे क्यों बैठे हैं, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते, हम कॉलेज क्यों नहीं जा सकते। पर अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे तो आप में टॉलरेंस आएगी। और मैं बोलता हूँ कि आज के जो बच्चे इस सेशन में पढ़ रहे हैं, जो अगले सेशन में पढ़ रहे हैं, इनकी केस स्टडी अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में बस सिखाई जाएगी कि कैसे इन बच्चों ने इतने मुश्किल टाइम में अपने चैलेंजेस को हैंडल किया। इसीलिए मैं अपने वेबिनार का जो टॉपिक रखता हूँ वो हैंडलिंग चैलेंजिंग टाइम्स है। देखिए अनसर्टनिटी है, हमें नहीं पता कि पेंडेमिक कब खुलेगा और किसी ने मांगा नहीं, और पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में दोबारा इस कोल्ड वेव आ गया। तो अगर इनसर्टनिटी को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको फियर रहेगा कि मैं मर जाऊंगा, डर लगेगा। अगर आप बंजी जंपिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं या माउंटेनियरिंग करते हैं तो आपको डर रहता है। अगर आप उस डर से रहेंगे तो कभी भी नहीं जाएंगे, पर उस डर को अगर आप ओवरकम कर देंगे तो आपको एडवेंचर लगेगा। जो लोग बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग या माउंटेनियरिंग या कोई भी एडवेंचर करते हैं तो उनको एडवेंचरस लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया। और कुछ चीजें अगर आपके पास नहीं है तो कभी जेलसी मत करिए कि उसके पास BMW ऑडी क्यों है, क्योंकि हम सब एंटाइटल नहीं है कुछ चीजों के। कुछ चीजों के लिए हमें इंस्पिरेशन करनी चाहिए कि मैं भी अच्छा काम करूंगा और मैं भी ये काम, मैं इस मुकाम पे हासिल होऊंगा। और अगर कोई आपको हर्ट करता है तो स्वामी विवेकानंद या गौतम बुद्धा की तरह हमें उनको फॉरगिवनेस करनी चाहिए, हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। अपने आप को दुखी होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लाइफ जो है वो इम्परफेक्शन के साथ चलती है। परफेक्ट लाइफ कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि स्कूल में 3 शरारती बच्चे थे। स्कूल में 2 ही तरह के बच्चों को जाना जाता है, या तो जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो बहुत शरारती होते हैं। बीच के लोगों को जो क्लास के जो टीचर है वो खाली रोल नंबर से जानती है। तो ये 3 शरारती बच्चे थे, इन्होंने कहा अगले दिन स्कूल नहीं लगना चाहिए। तो इन्होंने 3 बकरियां पकड़ ली, क्योंकि कुत्ता पकड़ना या बंदर का बच्चा पकड़ना फिर भी मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज इल इक्विप्ड एंड डिफेंसलेस। हमारे पास में कुछ चीज नहीं है कि अगर बंदर आ जाए हमारे पास या कुत्ता कुत्ता आ जाए उसको कैसे हैंडल करें। तो उन्होंने 3 बकरी के बच्चे पकड़ लिए। बकरी पकड़नी फिर भी आसान है, तो उस पे पहली पे लिखा नंबर 1, दूसरी पे लिखा नंबर 2 और तीसरी पे नंबर 4। बकरियां 3 थी, नंबर लिखे गए 1, 2 और 4। उनको रात को स्कूल में छोड़ दिया गया। अगले दिन पहले 15 मिनट में बकरियां पकड़ ली गई, पर पूरा दिन स्कूल नहीं लगा। और स्कूल इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो 3 नंबर की बकरी को ढूंढ रहे थे। उनको लग रहा था कि एक बकरी और है, क्योंकि 3 नंबर का नंबर मिसिंग है। मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिया कि लाइफ में कुछ चीजें आपके हिसाब से परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ आपके पास में कमी होगी, पर उस कमियों के साथ जीने के लिए आपको सीख सहना पड़ेगा कि रादर देन कि आप ये कहो कि ये होता तो वो होता, वो होता तो वो होता। कुछ चीजें परफेक्ट नहीं होती। और एक आस्क प्रिंसिपल होता है, ASK, एप्ट सोल्यूशन फॉर नॉट्स इन लाइफ। A इज फॉर एटीट्यूड, K इज फॉर नॉलेज एंड S इज फॉर स्किल्स। तो ASK में अगर आप जाएंगे तो K स्टैंड फॉर नॉलेज। अगर आपके पास में ये जो नॉलेज आपने 20 साल में ली है या 18 साल में ली है, वो 15% ही काम आएगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। आपको 35% जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे स्किल्स के, कि आपको स्किल्स एक्वायर करनी है ऑन अ रेगुलर बेसिस।
और जैसे मैंने कहा कि एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव होगा और उसके साथ अगर आप प्रॉपर एक्शन लेंगे तभी लाइफ में आप कॉम्पिटेंस के साथ सक्सेसफुल रहेंगे। अदरवाइज आप खाली नॉलेज लेते रहेंगे और स्किल्स को नहीं इंप्रूव करेंगे, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव नहीं होगा, तो कभी भी वो किताबी कीड़े बन के रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। देखिए 4D फिलोसफी ऑफ सक्सेस है और ये मैंने ली है मिस्टर शिव खेरा से, जो भी पहले रांची और बिहार से ही थे, उनका पहले कोल माइंस थी वहीं से, उनकी बुक भी है यू कैन विन, और उसकी पहले पेज पे ये लिखा गया है द एवरेज एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज ऑलमोस्ट सेम, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज डिजायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। आप में बर्निंग डिजायर अंदर से होनी चाहिए, अंदर से आग लगनी चाहिए, फायर इन द बेली होनी चाहिए, किलिंग इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि मेरे को ये काम करना है। डायरेक्शन के लिए आपको गुरु मिल सकते हैं। डेडिकेशन में आपको 90 और 100 के बीच में जाना पड़ेगा। 90 तक का बैरियर सब लोग ब्रेक कर सकते हैं, पर 90 से 100 के बीच में जाने में मुश्किल आती है। क्रिकेट में भी अगर आप देखो, आपने 99 रन बनाए तो अंपायर के पास में कोई एक रन का नहीं होता कि आपको वो दे दे और सेंचुरी डिक्लेयर हो। जब तक आप 100 नहीं बनाएंगे तब तक 100 नहीं होगा। वाटर भी अगर 100 डिग्री पे नहीं होता तो बॉयल नहीं होता। और लास्ट है डिसिप्लिन। देखिए स्कूल कॉलेज में आपको डिसिप्लिन इन्फोर्स किया गया था, पर प्रोफेशनल लाइफ में आपको डिसिप्लिन अंदर से लेके आना पड़ेगा। एक और बड़ी फेवरेट स्टोरी है मेरी, अपॉर्चुनिटी एंड लक। कई बार हमारे को लगता नहीं दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास या यूएस में पैदा हुए थे, लंदन में होते तो ज़्यादा अच्छे रहते। आई थिंक जहाँ पे भी आप पैदा हुए हैं आपको उस जगह का गर्व होना चाहिए। एक बुक स्टॉल था जहाँ पर एक 25-30 साल का लड़का जो है बुक खरीदने जाता था, कॉलेज में था तो जाता था बुक खरीदने, और बुक स्टॉल पे हर सैटरडे को जाता था, और बुक स्टॉल के जो ओनर है उसकी बिटिया बहुत सुंदर थी, और वो हर सैटरडे या संडे को वो हेल्प करने आती थी पापा को गिफ्ट रैप करने के लिए, क्योंकि लोग गिफ्ट भी लेते थे। और ये लड़के का ऑब्जेक्टिव जो है बुक पढ़ने का नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव इसका खाली सिंगल साइड लव अफेयर था विद दैट गर्ल, और सिंगल साइड लव था। कभी इसमें हिम्मत नहीं पड़ी जाके उसको कहने के लिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो हर सैटरडे को जाता था या संडे को जाता था, बुक खरीदता था, 10-15 मिनट लगाता था, लड़की को देखता था। लड़की भी धीरे धीरे लड़के को चाहने लग गई, क्योंकि लड़का भी एक एवरेज और ठीक लड़का था, उसका सिंसियर एफर्ट लग रहा था। खाली फीचर पे नहीं जाती लड़कियां, उसके सिंसियर एफर्ट पे भी जा रही हैं। और 52 हफ्तों के बाद, 1 साल के बाद जब वो गया तो देखा वहां पर लड़की नहीं है। उसने फिर फादर से 2-3 हफ्ते तक तो हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की कि लड़की कहाँ है। पर 3-4 हफ्तों के बाद में पूछा कि आप अंकल खुद ही पैक कर रहे हो, वो लड़की नहीं है जो पैक करती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी शादी हो गई। तो निकाह पिक्चर का गाना शुरू हो गया, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, और शाहरुख खान की तरह घर में आके बड़े गुस्से में सारी किताबें फाड़ने लगा। जब उन्होंने किताब फाड़नी शुरू करी तो कवर उसका उतारना पड़ा। कवर उतारते टाइम उसने देखा कि हर किताब के ऊपर एक येलो स्लिप लगी हुई थी, जो हमारी एक येलो स्लिप आती है, मीट मी इन दी पार्क इन दी इवनिंग एट 7 PM। मुझे शाम को 7 बजे पार्क में मिली है। वो अपॉर्चुनिटी उसके पास इतनी क्लोज थी, पर उसने कभी भी कवर ही नहीं उतारा किताब का। इसीलिए लाइफ में कई चीज़ें हमारे पास बहुत पास होती हैं, पर हम उन चीज़ों को कभी भी देखते नहीं है कि भी वो अपॉर्चुनिटी को हम अवेल नहीं करते। और डेल कार्नेगी ने कहा था, एक्सप्लेन किया है लक की डेफिनेशन। डेल कार्नेगी भी एक बहुत अच्छे मोटिवेटर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं, अगर आपने पढ़ी हो तो। उन्होंने लक को डिफाइन किया था, लक इज नथिंग बट मीटिंग पॉइंट ऑफ अलर्टनेस ऑफ माइंड व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज पासिंग बाय। देखिए आपका अलर्टनेस ऑफ माइंड होना चाहिए जब अपॉर्चुनिटी आपके पास से जा रही है। अगर आप सोते रहेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास से निकल जाएगी, कोई और ले जाएगा। ये तो वही हिसाब है कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे अगर आप खड़े हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि फर्स्ट क्लास के डब्बे में जाना है। वो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो नहीं जा सकते। बशर्ते आपके पास प्लेटफॉर्म का टिकट हो या सेकंड क्लास का हो, थर्ड क्लास का हो, वहाँ जाके आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। और लाइफ में जब तक आप अपने आप को जो है अपग्रेड नहीं करेंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा देर वेट करते रहेंगे तो बिस्कुट चाय में डुबो, तो ज़्यादा देर तक वेट करोगे तो कहीं ना कहीं वो बिस्कुट नीचे चला जाएगा। दीज आर टू इंपॉर्टेंट अल्फाबेट, बी एंड डी। बी स्टैंड फॉर बर्थ एंड डी स्टैंड फॉर डेथ। इसके बीच का इंपॉर्टेंट अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सी स्टैंड फॉर चेंज। एंड पीपल डोंट रेजिस्ट चेंज बट दे रेजिस्ट बीइंग चेंज। जब उनके बारे में बात आती है तो कहते हैं नहीं नहीं, ये दूसरों के लिए तो सलाह अच्छी है पर मैं नहीं करूँगा। मॉर्निंग वॉक करना या रात को सोने से पहले ब्रश करना सब लोगों को पता है। कितने लोग ऐसे हैं जो जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे या रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं। आई थिंक वी हैव अ चॉइस ऑफ डूइंग द थिंग्स। अगर हम गलत चॉइसेस करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे लाइफ को, अगर अच्छी हैबिट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। 5 क्वालिटी ऑफ ए विद्यार्थी, जो कि हमारे को वेदों से सिखाया जा रहा है कि इज लाइक काक चेष्टा, पेशेंस एंड हार्डवर्क। लाइक ए कौवा जब वो मटके में से पानी पीता है तो उसमें पेशेंस और हार्डवर्क होता है। इंटेंस फोकस ऑन गोल होना चाहिए, बको ध्यान होना चाहिए। लाइक क्रेन एक पहिए पे बगला खड़ा होके बड़ी फिश की इंतजार करता है,
एंड वी शुड बी श्वान निंद्रा, हमारे को अलर्ट होना चाहिए लाइक ए डॉग, डॉग सोता कम है। अल्पाहारी, वी शुड हैव राइट इनपुट टू द बॉडी, हमें सही खाना चाहिए, जैसे गांधी जी ने कहा था, सही खाना, सही देखना चाहिए, सही बोलना चाहिए और सही सुनना चाहिए। और लास्ट में लीव योर कंफर्ट जोन। जब हम ग्रो करते हैं तो हमारे को गुरुकुल में जैसे बच्चे पढ़ने जाते थे तो उनको अपना कंफर्ट जोन जो महलों का है वो छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसे ही हमारे को जब हम ग्रो करेंगे लाइफ में तो ये मत कहिए कि हम पटना में रहना चाहते हैं, बिहार में रहना चाहते हैं, हमें वर्ल्ड, इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कोने में भेजा जाएगा तो वहाँ जाके काम करते हैं। एंड आई नो that the people from Bihar are very positive of moving outside their thing, either for studies or for education. देखिए, जो लोग MBA करते हैं मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि MBA का फुल फॉर्म आपके हिसाब से है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, which needs to be corrected from master of business administration to master of business adaptation. You see, Darwin की थ्योरी है, it is not the strongest of the species that survive today, not the most intelligent one, but the species those who survive today were the species those who were adapted to change. आप जब तक चेंज को अडेप्ट नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला. You will have to adapt, adopt, and then act upon that and move forward toward the life. You will have to transform. देखिए, आपकी स्टूडेंट लाइफ से लाइफ है, कभी प्रोफेशनल लाइफ में चली जाएगी, जॉब करना पड़ेगा, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर उनको ग्रो करना है, फिर मकान लेना है, घर लेना है, कुछ करना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ की हो जाएगी. हर टाइम आप माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे. दीज आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग. जो लोग MBA करते हैं उनको प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेसमेंट सिखाया जाता है. तो मेरा मानना है कि वो पुराने हो गए, वो चीज़ें सब पता है सबको. 4 P जो नए मार्केटिंग के हैं आपको होना चाहिए कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ. पर्पस ऑफ लाइफ खाली जॉब लेना नहीं है, आपको कैरियर बनाना है. और कैरियर बनाने के लिए जब तक आपके पास पैशन नहीं होगा कुछ नहीं होगा. पैशन के साथ साथ आपको लोगों के साथ लेके चलना पड़ेगा. जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो हमारे को कोलैबोरेटिव अप्रोच और सिनर्जी नहीं सिखाई जाती. हमें ये बोला जाता है तुम इंडिविजुअली काम करो, तुम्हारे नंबर तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे. तो हमारे को पीपल स्किल्स भी आने चाहिए. और लाइफ में जिन लोगों के पास पीपल स्किल्स और आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है वही लोग ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल होते हैं. खाली नॉलेज से 15% ही आपको नंबर मिलने वाले हैं. इंडिया हैज़ द यंगेस्ट इकोनॉमी, इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35. जो यूथ है वो रेडी टू चेंज है, कॉन्फिडेंट भी है और कंजम्पशन भी कर रहे हैं लोग. लॉ ऑफ पर्सनालिटी. पर्सनालिटी का मतलब पर्सन इन रियलिटी. आप ये मत जाइए कि आपके लुक्स कैसे हैं, कि आप गोरे हैं या हाइट आपकी 6 फुट की है. लुक्स का मतलब होता है नीट, वेल केप्ट, वेल ग्रूम्ड, अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड एंड लाइवली. देखिए, आपका 90% आपकी बॉडी कवर्ड रहती है, खाली आपका फेस ही होता है जो आपका एक्सपोज होता है. तो लुक्स पे मत जाइए. आपका वेट आपके हाथ में मेंटेन करना, पर आप नीट, वेल केप्ट, वेल ग्रूम्ड है तो आपके लुक्स अच्छे हैं. एक्शन मीन्स आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बिहेवियर, मैनरिज्म, एटिकेट, बॉडी लैंग्वेज. क्योंकि ह्यूमन बीइंग एनिमल है, वो पहले से जानवर है, वो पहले से उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी तो बॉडी लैंग्वेज आज भी समझता है. ज़्यादा बनस्पत उस पर कि हम भाषा करें, फंडू इंग्लिश बोलें और इम्प्रेस करने की कोशिश करें. और लास्ट में हमारे वर्ड्स, हम क्या बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, रीजनिंग. देखिए, इस प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत चॉइस से प्रेजेंटेशन में वर्ड्स और स्लाइड्स लगाई हैं ताकि वो रेलेवेंट रहें. इधर उधर की फालतू बात करने से मैं आपको कनेक्ट नहीं कर सकूंगा. एंड 3C फॉर सक्सेस. आप में, जैसे मैंने कहा शुरू में, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप में कॉमन सेंस होनी चाहिए और आप में आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए. जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश आती है ठीक है, अदरवाइज अगर उसके साथ साथ में आपकी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है तो मोदी जी की तरह, भाई और बहनों की तरह कनेक्ट कर सकते हैं. जापान एक छोटी सी कंट्री है, उसमें सक्सेस का राज यही है कि वो क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, ह्यूमन कैपिटल मतलब लोगों पे बिलीव करते हैं और कस्टमर डिलाइट पे काम करते हैं. सो इज द केस विद इजराइल. छोटी सी कंट्री 7 कंट्रियों से घिरी हुई है, पर वो उनको कोई भी कंट्री आज उनके ऊपर नहीं वार कर सकती क्योंकि वो वेरी गुड इन आर्म्स, इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी हैं. देखिए, ऐसे सब लोगो जो आप देख रहे हैं, ये सब लोगो जो है इम्पोर्टेड लोगोस हैं. चाहे वो व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, अमेजोन है. हमारे यहाँ हम कहते हैं कि हम टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, पर हमने टेक्नोलॉजी पे कोई काम नहीं किया. मैं बता दूं कि चाइना ने इनका सबका तोड़ निकाल रखा है. चाइना में इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते, वहाँ गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है. उनके पास ये ऑल्टरनेटिव है, इसलिए आज वो US को भी थ्रेट कर सकते हैं कि भैया तुम अपने यहाँ बैठे रहो, हम जिस हिसाब से काम करेंगे अपने हिसाब से काम करेंगे. पेंसिल से एक और अच्छी चीज़ सीखी कि व्हाट इज़ विद इन यू is more important, and unless what is within you comes out, you will not be able to make an impact. देखिए, मैंने आपको कहा कि आपका हाइट
आपका फीचर्स, आपका बॉडी का कलर फिक्स हो चुका है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट आपके अंदर क्या है, हर आदमी के अंदर एक हीरा छुपा होता है। तो जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तो इंटरव्यू में जाके आप खाली बैठ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके अंदर से जो है वो चीज़ बाहर नहीं निकलेगी। और अगर आप सेलेक्ट होते हो, लाइफ में ग्रो करते हो, तो आपको स्किल जो है शार्पन करनी पड़ेंगी। और अगर कहीं गिर जाते हो तभी भी कोई बात नहीं, गलती करते हो तो उसको सुधार करना भी आपको आना चाहिए। और लाइफ में ग्रोथ के साथ साथ जब आप प्रोफेशनल और एकेडमिक गोल्स ग्रो कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ग्रोथ करते करते कहीं आप हेल्थ, फैमिली और रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, जो बच्चा देखिए लेमन एंड स्पून रेस में जीतता है, वो नहीं होता जो तेज दौड़ता है, वो वही होता है जिसका लेमन स्पून में होता है और बैलेंस करके चलता है। इसका मतलब ये है कि आपको ग्रोथ के साथ साथ आपको हेल्थ पे ध्यान रखना है, आपको फैमिली पे ध्यान रखना है और आपको रिलेशनशिप पे ध्यान रखना है। ये चीज़ें अगर आप छोड़ देंगे, छूट गई, तो लाइफ में दोबारा कभी भी आप इसको रिवाइंड बटन दबा के वापस नहीं ला सकते। तो ग्रोथ के साथ साथ हेल्थ, फैमिली और रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान देंगे तो अच्छा है। और दूसरी बात ये मैं बताता हूँ, जब आप ग्रोथ कर रहे हैं तो आपके पास लाइफ में कई बार शॉर्टकट्स आते हैं। उन शॉर्टकट्स को आप मत देखिएगा, आप एथिक्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल को पे ऊपर चलिए, क्योंकि जो लोग वैल्यूज एंड प्रिंसिपल के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वही लोग आज जाने जाते हैं विदाउट एनी पोजिशनल पावर। और ये मेरी लास्ट की स्लाइड है, टेक अवे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वेबिनार के बाद कुछ सीख के ना जाएं या कुछ लिख के ना जाएं या कुछ आप नोट करके ना जाएं तो उसका कोई फायदा नहीं है। इस स्लाइड को आप चाहे बाद में फोटो ले सकते हैं। बी ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। देखिए, आपकी अर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लर्निंग। जितनी आप लर्निंग बढ़ाते रहोगे उतनी आप अर्निंग बढ़ाते रहोगे। एंड ऑल लीडर्स आर बेसिकली रीडर्स। वो कहीं ना कहीं लीडरशिप और लर्निंग दोनों बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपडेटेड नहीं है तो कहीं ना कहीं लाइफ में आउटडेटेड हो जाएंगे। दूसरा है पैशन फॉर एक्सेलेंस। जो भी आप काम करिए उसमें जान झोंक दीजिए, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो एक्सेलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। वो कैजुअल वे में अगर आप काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बी योर सेल्फ, डोंट इमिटेट। किसी को कॉपी मत करिए। भगवान के फॉर्चुनेट हो कि भगवान ने आपको एक बहुत बड़ा अच्छा शरीर दिया है। फॉर्चुनेट है कि हमारे में कोई फिजिकल चैलेंज नहीं है। हमें रोज सुबह उठ के ये शुक्राना करना चाहिए कि भगवान ने आपने हमारे को एक नया जीवन, नया दिन दिया। तो डोंट इमिटेट। मैं कई बार कहता हूँ, अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी या कोई और इंदिरा गांधी नहीं बन सकते। तो जो आदमी है वही रहे। बी ए गुड स्टोरी टेलर। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टोरी सेल्स बट फैक्ट्स ओनली टेल्स। तो आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। मोदी जी की तरह सीखिए कि कोई भी चीज़ को स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज देखिए, हमारे को स्टोरी सारी याद है, चाहे थर्स्टी क्रो की हो, चाहे वो मंकी एंड कैप की हो, चाहे मंकी एंड क्रोकोडाइल की हो, चाहे वो हेयर एंड टॉर्टोइस की हो। पर हमारे को पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं होगी या साइंस कोई याद नहीं होगी जो हमने पढ़ी होगी। और लास्ट में जाते जाते हमारे को वैल्यू बेस्ड डिसीजन लेने चाहिए। कोई भी डिसीजन इमोशनल मत लो कि किसी को फेवर करने के लिए आपने डिसीजन ले लिया। एंड व्हेन यू ग्रो, डेवलप पीपल अराउंड यू। आपके पास में जब तक टीम नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो टीम पे आप काम कर सकते हैं, और जो लीडर्स हैं वो लोगों के बेनस पे ही काम करते हैं, अदरवाइज अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। मैं लिंक्डइन पे भी हूँ और यूट्यूब पे भी हूँ। जो लोग मेरे साथ में लिंक्डइन पे टच करना चाहें वो इनवाइट भेज सकते हैं। आई एक्सेप्ट दोज इनवाइट, and those who want to be on the YouTube channel also can view some of my YouTube videos which are there. And I can allow you for sharing this video also on the YouTube. तो LinkedIn and YouTube पे आप मेरे साथ में connect हो सकते हैं। And now I'll stop the presentation and I'll keep the session open for Q&A. तो मैं मॉडरेटर से, कुणाल से रिक्वेस्ट करूंगा, या डॉक्टर, जहाँ डॉक्टर और प्रोफेसर लिखा होता है मेरे को बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं बड़े ही सीनियर और बड़े पढ़े लिखे आदमियों के साथ में वार्तालाप करने जा रहा हूँ। पर आज मेरे को फॉर्चुनेट है कि जो क्वेश्चन पूछेंगे शायद बच्चे ही पूछेंगे, क्योंकि डॉक्टर और प्रोफेसर जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसमें तो शायद फेल हो जाऊँ। तो जो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे उसको शायद मैं सही ढंग से जवाब दे दूँ, क्योंकि वो लाइफ से रिलेटेड होंगे तो उनको मैं फिर भी एडवाइस कर सकता हूँ। And Kunal, you can moderate and you can ask on behalf of students अगर चैट में कोई क्वेश्चन है, और अगर कोई वैसे क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। Thank you so much, Basin sir, for the very insightful ABCD of life. May I invite Shalini to please be here and ask your question, please. Shalini, hope you're there. Shalini Kumari from BJMC.
Please unmute yourself, Shalini, and ask your question. पहला क्वेश्चन पूछना सबसे डिफिकल्ट होता है, बाद में I think Shalini is not here, I suppose. So let's have another student, Nimisha. Nimisha, yeah, are you there, Nimisha? Yes, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening. Welcome to Amity University, Patna. Thank you so much for your inspiring words, sir. So, being the president of such a huge company, you must have had lots of workload. So, how do you manage your work-life balance, and how do you take care of it, sir? देखिए, मैंने आपको बताया था मेरी स्लाइड की लास्ट जो वर्ड था, यू शुड बिल्ड अप गुड टीम. देखिए, जब आप ऊपर चलते हैं तो आपके पास में टीम अच्छी होनी चाहिए. अकेले आप कुछ नहीं कर सकते. तो ये लोग, हमारे यहाँ बहुत मिथ होता है कि जो सीनियर होता है उसके पास बहुत काम है. मैं आपको आज बता दूं, जो सबसे सीनियर होता है उसके पास कोई काम नहीं होता. वो खाली कैबिन में बैठ के ये प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसके पास काम है. ये उन्हीं लोगों के पास काम होता है जो काम देना नहीं चाहते. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती. देखिए, जब आप किसी को डेलीगेट करते हैं तो वो अच्छी शिद्दत से काम करता है. पर अगर आप किसी को ये कहो कि मैं आपसे अच्छा काम कर सकता हूँ, देखिए जो सीनियर है ना वो आपसे अच्छा काम कर सकता है, पर अगर वही काम करेगा तो फिर आप क्या करोगे. तो ये और वर्क लाइफ बैलेंस, मैंने आज से 25 साल पहले शिव खेरा का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था. तो उसमें उसने बोला था, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ. तो थोड़ी देर तक तो समझ ही नहीं आया, इंग्लिश इतनी तेज बोल गया, हमारे को भी नहीं समझ आती थी उस टाइम में. तो बाद में ध्यान आया, फैमिली. एंड सेकंड क्वेश्चन वो पूछता है, हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड वन. आंसर सेम है, फैमिली. Yes. मैंने इसीलिए आपको वर्क लाइफ बैलेंस में बताया था कि कैरियर और एकेडमिक गोल को चेज करते करते हेल्थ, फैमिली और रिलेशनशिप को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना. अगर आप हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, 16 घंटे काम करेंगे और कहीं ना कहीं आप हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, लाइफ में रिवाइंड बटन नहीं है कि आप दोबारा से हेल्थ रीगेन कर सकते हैं. सेम इज द केस विद फैमिली एंड रिलेशनशिप. फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप जो हैं वो आपकी फैमिली की वजह से हैं. और मैं आपको बता दूं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपको इस लेवल पे लाने के लिए. उन्होंने शायद वो कभी एंजॉयमेंट नहीं देखी होंगी, कभी वो एंटरटेनमेंट नहीं देखा होगा. इसी ख्वाहिश से, इसी पर्पस से कि आप पढ़ें, आप लिखें और आप एक अच्छी जीवन पे व्यतीत करें. तो आई थिंक पर्पस ऑफ लाइफ हमारा क्लियर होना चाहिए. तो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है अपनी टीम पे आप अपना काम करिएगा. देखिए, क्रिकेट में अगर आप देखो, आज आईपीएल में धोनी और कोहली की टीम नहीं जीती, और कोहली 8 साल से कैप्टन है, कभी भी वो फाइनल में भी नहीं आया. क्यों? खाली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से कभी भी टीम नहीं जीती. अगर आपके पास में अच्छे यंग प्लेयर हैं, और आज भी बॉम्बे में जो जीते वो यंग प्लेयर्स ने जीते जिनका नाम भी नहीं पता था कुछ लोगों को. तो आई थिंक यूथ को चांस देना चाहिए. हम कई बार कहते हैं यूथ इज यूजलेस एंड केयरलेस. आई थिंक इसको करेक्ट करना चाहिए, यूथ इज यूज्डलेस एंड केयरलेस. Yes, sir. जितना यूज करोगे उतना ही जूस निकलेगा इस गन्ने में से. जो Sir, your words are really very inspiring, sir. Your presentation is also very interesting. Sir, who is your inspiration, by the way? My inspiration is, I am myself an inspiration कि I have to live in this life for giving service to the people, and that's why I do this kind of webinars very often. I do almost 3 webinars in a week, and at times my family also asks that why do you do it, and why do you do it in the evening? It is a tea time, we want to have family time. So I said no, if I can contribute back to the society what I have experienced by my failure. And let me tell you my failure story, that I am a second class BSc graduate, and of the science I only remember one law, that is the third law of every action has got an equal and opposite reaction. And that I don't remember anything. And I did postgraduate master degree in public administration through correspondence, for which I don't even remember any of the subject which was there into that. And I did postgraduate diploma in marketing and sales, that too in a part-time. And that is the only case where I got first division. In all the other categories, I get second division. So I'm an average student, but with the passion and hard work, I have achieved this position. And why I shared this failure story with you, that you as an average student can also perform and go to the highest. Don't think that Delhi University में पढ़े होते तो ज़्यादा अच्छा रहता है.
कहीं से भी पढ़े हो, आपके नाम से बाद में कॉलेज का नाम होना चाहिए कि ये बच्चा इस कॉलेज से पढ़ा है, ना कि उस कॉलेज से पढ़ा है तो ये ठीक होगा। उस कॉलेज से पढ़े हुए, हार्वर्ड से पढ़े हुए कई जो है फेलियर मैंने देखे हैं। और छोटे छोटे कॉलेजेस से इंडिया से जो लीडर्स हैं आज, चाहे वो गूगल है, चाहे वो बाकी जितनी भी बड़ी कंपनी हैं, उनको सब इंडियन ही लीडर्स लीड कर रहे हैं। और बिहार से तो जितने आईएएस निकले हैं वो ही कम गिनती शुरू करोगे तो कम ही हो जाएंगे शायद। Thank you so much, sir, for taking our Thank time you for so us. much. Thank you, Nimisha. Thank you, Can sir. we take another student? Can we have Yashraj Modi? Please, Yash, unmute yourself and ask your question. Yash Modi. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Welcome you to Amity University, Patna. Thank you. So my question to you is that as you have been facilitated with the Entrepreneurial Excellence Award of the Year, so what do you have to say about the startups in India and suggest some tips for the future entrepreneurs? You see, the meaning of entrepreneurship is ownership. I'll once again repeat, the meaning of an entrepreneurship is ownership. Ownership. If you own anything, and when you own anything, you have to own the failure as well as success both. But what happens is we want to take all the credit of the success, but we don't want to take anything of the failure. So it is an accountability. So when you have a responsibility, and the meaning of responsibility is ability to respond, not react. So if you are ready to share your failures also and learn by your mistakes, then you can become an entrepreneur. And I have seen that, you see, in India 50,000 babies are born every day. Government can't give these jobs to all 50,000 people. There have to be people entrepreneurship. And let me tell you, the students, those who pass out from Harvard Business School also, there are only 3% of the people, those who become an entrepreneur. Balance 97 work for them. So entrepreneurship is and you all are fortunate that at this point of time you can take a risk. देखिए, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो पहली सैलरी 400 रुपये महीने की थी, और वो पैसा माँ के हाथ पे रखना पड़ता था क्योंकि घर का खर्चा उससे चलता था। आज आपके पास में ये है कि आप आज हमारे बच्चे जो हैं या आप हो, वो जरूरी नहीं कि आपका पैसा माँ बाप को दिया जाए। तो आप अगर कोई रिस्क लेना चाहते हो, कुछ उसमें लॉस भी हो जाएगा तो वो भी बियर किया जा सकता है, जो कि आपके लिए एक बहुत फेवरेबल पिच है प्ले करने के लिए। Thank you, sir. Thank you, Yash. That was a nice question. Can I have Muskan Kumari? Could you please unmute yourself and ask the question? Muskan. Yeah, Muskan. So my question is, we are final year students and we are just few years away from the placement. And so what are the requirements a company needs? इतना घबरा के पूछोगे तो कैसे होगा काम तुम्हारा? देखिए, कोई बात नहीं। देखिए, वो मैंने बोला था ना, फियर होता है या होता है, तो फियर नहीं होनी चाहिए, एंग्जाइटी होनी चाहिए मन में। देखिए, इस पेंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि नेचर डिजर्व्स आवर रिस्पेक्ट, लाइफ इज शॉर्ट, जॉब्स आर टेम्परेरी, योर सेविंग कैन सेव यू, एंड योर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज योर हेल्थ एंड योर फैमिली। तो देखिए, जॉब्स तो अभी टेम्परेरी हैं, अब पता लग गया कि अच्छे लोग घर पे बैठे हुए हैं, बट आई थिंक सो ये टेम्परेरी फेज है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। और इसमें मेरी एक एडवाइस सभी को है कि आप में इन दी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नेवर ए इनकम गैप, देयर इज ऑलवेज स्किल गैप। अगर आप स्किल, जैसे मैंने आस्क प्रिंसिपल बोला था, तो आपकी नॉलेज जितनी आपने ले ली वो बहुत है, उसमें लर्निंग ऐड करते रहोगे तो ठीक है, बट आप स्किल को इम्प्रूव करिएगा। घर पे बैठे बैठे अगर आप आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर जाते हो या वोकैबुलरी इम्प्रूव करते हो तो वो आपको हेल्प करेगी। देखिए, आज के टाइम पे अगर आप वेब पे इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए कि अगला आदमी आपको देखते ही बोले नहीं यार, ये जो है ये इसमें कुछ दम है, इसमें कुछ मसाला है, इसको रखना चाहिए, इसमें जोश है। देखिए, जब तक
आप में वो एंथुसियाज्म और एनर्जी नहीं होगी, तब तक आपको क्यों रखेगा कोई? उसको कोई अगर 10 आदमी उसके पास में सिलेक्शन में है, तो 10 में से तो वो एक ही अगर वैकेंसी है तो सबसे बेस्ट को रखना चाहेगा ना। तो उसी को रखना चाहेगा जिसमें एंथुसियाज्म है, एनर्जी है और कोई एक्स्ट्रा देने को तैयार है। क्लास में मॉनिटर किसको बनाया जाता है? जो 10 बारी हाथ खड़ा करता है, यस मैम, यस मैडम, मैं काम कर सकता हूँ, मैं चार्ट लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जो पीछे बैठे हंसी ठाठे कर रहे होते हैं, उनको तो संभालने के लिए वो मॉनिटर बनाया जाता है ना। तो आप में कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तभी होगा काम। Thank you, sir. Thank you, Muskan. Thank you, Muskan. Soumya, can we have your question, please? Soumya from BTech. I guess Soumya got disconnected. So can we have Shivam Prakash? कुणाल, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं सर, बच्चों ने सर काफी मेहनत की। Shivam, are you there? Shivam. Yes, sir. Please. Am I audible? Yeah, very much, Shivam. A very good evening. This is Shivam Prakash from Amity School of Communication. And my question to you is, as your company had a large workforce, what are your views on cultural diversity in the organizations? You see, any organization, you can copy anything, but you can't copy the culture. And as an human person, as an HR, let me advise you, there are C, D, and E. C is for culture of an organization, which starts from the top. D is for diversification. You have to have a diversified people along with you. अलग अलग रोल करने के लिए अलग अलग आदमी में काम होना चाहिए. And E stand for engagement. If you are able to engage with large people, you see today why Modi ji comes on Sunday on the radio, and why every fortnight he comes and connect with people of the country, is basically he is engaging during this pandemic, or even without this also he was engaging. So culture of an organization has to be there, and there should be culture of an organization should be based on values and principles. That's why if you see my last slide, I have said you should, as a leader, you should take a decision of a value-based decision rather than taking decision the way Trump has been speaking so foolishly, left, right, and center. So he's lost his position also. So you have to take value-based decision. You can't take emotional decision that I like you or I dislike you and that's why I take this decision. And always have values and principles with you. That's why you can build up a big building. Otherwise, अगर बिल्डिंग में नीचे की बुनियाद सही नहीं होगी, रूट्स ही अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो फ्रूट्स अच्छे लगेंगे नहीं. Thank you so much, sir. Thank you, Shivam. That was a nice question. Ariba, are you there with your question, please? Ariba? Yes, sir. Yeah. Good evening, sir. I'm Ariba Shamim from MBA 3. It's an honor to have you here, sir. As we all know, due to this COVID-19 pandemic situation, various individuals have lost their job, as well as the unemployment rate has increased massively. So what is your point of view, sir? Please enlighten us and also suggest some solution for the same. Thank you. You see, first thing this pandemic has taught everyone is that less is enough. I will once again repeat, less is enough. You see, in my wardrobe, all these suits are hanging for the last 9 months. Very true. Very true. And I am wearing this same white shirt for the last 7 months because there's no need of changing the color also. And I have different ties for different shows. That's the only thing what we have learned is that less is enough. And what I would advise you is that never get demotivated. Always work on yourself. Human mind by default is program negative. I'll once again repeat, human mind by default is program negative. When you wake up in the morning, तो आदमी को लगता है यार ये सुबह क्यों हो गई, अभी तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई थी. और आजकल के बच्चे तो वैसे ही सोते जो हैं, मेरे को पता है कितने बजे सोते हैं. उनके लिए तो सुबह उठना वैसे ही एक बड़ा चैलेंज है कि वो माँ बाप को वो मुशक्कत लग जाती है ये बताने के लिए कि भी नाश्ता कब बनाया था और कब खाना है आपको. तो आई थिंक यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. आई थिंक
एंड जब आप प्रोफेशनल करियर में जाते हैं तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए मैं कहता हूँ कि इट इज़ वेरी इजी टू वेक अप, वेरी डिफिकल्ट टू गेट अप फ्रॉम द बेड. You see, planting tree is very easy, but growing trees are very difficult. So आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और खुद ही को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और स्किल को आप इम्प्रूव करते जाइए. मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहले बोलना सीख रहा था तो मैं शायद वोट ऑफ थैंक्स भी नहीं दे सकता था, पर धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर काम किया. आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा. अगर आपको आउटस्टैंडिंग बनना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा. आपको शुरू में लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे, क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, कंटेंट नहीं होता आपके पास में. पर धीरे धीरे आपको, मेरे पास 100 स्लाइड्स हैं. अभी मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन दिखाई उसमें शायद 24 स्लाइड्स थी, पर मैं कोई और प्रेजेंटेशन करूंगा तो मेरे पास में डिफरेंट सेट ऑफ स्लाइड्स होंगी. इसके ऊपर मैं डिफरेंट फोरम में डिफरेंट लोगों के सामने बात करूंगा. तो आपको कंटेंट तैयार करना पड़ता है और ये कंटेंट मेरा बनाया नहीं हुआ है. आई एम ओनली माइक्रोफोन हु इज शेयरिंग दी थॉट्स which I have gained from this universe or from my seniors or even from my juniors also. तो I think आप कंटेंट पे काम करिएगा, उसके ऊपर काम करिएगा. तो आई थिंक जो आप ये देख रहे हैं, इवन शायद मेरे को अगर आपको दिख जाएगा तो मैं अपनी हैंड राइटिंग से नोट्स बनाता हूँ. आपको दिख रहा होगा इसमें शायद. मैं खाली बैठा, जब भी मेरे को कोई व्हाट्सएप से दिख जाता है या कहीं और से दिख जाता है तो मैं अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाता हूँ. उन नोट्स को फिर शेयर करता हूँ. उसमें से भी लगता है कि यार ये शायद जरूरी नहीं है इस ऑडियंस के लिए, उस ऑडियंस के साथ में मैं कुछ और बात करता हूँ. तो कहीं ना कहीं आपको ये जो आप बात सुन रहे हो वो आप याद नहीं रखोगे. इसलिए मैंने लास्ट में एक टेक अवे स्लाइड लगाई थी, क्योंकि अदरवाइज वो एज ए फ्लैश फ्लड हो जाता है. आप सुनते रहते हो, पिक्चर देखने जाते हो 3 घंटे में आपको आधी चीजें तो याद ही नहीं रहते कि वो क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है. और आज की डेट में हमारे पास सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल की. हर 10 मिनट के बाद हम मोबाइल पे जाते हैं देखने के लिए कि नया व्हाट्सएप आया नहीं आया, फेसबुक पे क्या है, मेरे इंस्टाग्राम पे क्या है. और मैं आपको बता दूं, फेसबुक ज्यादातर फेक बुक है. आप फेसबुक की फोटो देख लो और अपने आधार कार्ड की फोटो देख लो, दोनों में डिफरेंस देख लेना आपको. शायद किसी और को बताना पड़ेगा कि ये फोटो आप ही की है, क्योंकि वो आपने 100 में से एक फोटो लगा रखी है वहां पे, और आधार कार्ड पे उसने इंस्टेंटली खींच ली थी आपको बताए बिना भी. तो आप कहते हो कि तो मेरी फोटो नहीं है. Thank you, sir. Thank you, Ariba. With due permission from Bhasin sir, can we take a couple of more questions, please? हाँ, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. Okay. So, can we have Mayank Agarwal? Mayank, can we have you with your question, yes, sir. Please. Yes, sir. Yeah. Good evening, sir. A very warm welcome to Amity University, Patna. Thank you. So, my question to you is, sir, in the late 1950s, Mr. Kimmat Rai founded Havells with just rupees 10,000. And so now in 2020, market capitals of Havells is 38,000 crores. So how has this journey been possible, sir? देखिए, 1958 में ही वॉज ए ट्रेडर. उनके आज भी भगीरथ प्लेस में दुकान है, गुप्ता जैन कंपनी. 1958 से लेकर 1971 तक एक कंपनी छोटे स्केल पे ट्रेडर ही रहे थे. 1971 में ये ब्रांड एक्वायर हुआ था. उस टाइम पे इसको नाम ट्रेडमार्क कहते थे, ब्रांड नहीं कहते थे, तो उन्होंने ट्रेडमार्क लिया था. पर 1971 से लेके अगर आप 2000 तक की हिस्ट्री भी देखें तो कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ ही थी. तो 71 से लेके 2000 तक टर्नओवर 100 करोड़ थी. और 2004 में मैंने ज्वाइन किया था. 2004 में टर्नओवर थी 400 करोड़, प्रॉफिट था 20 करोड़. काफ़ी लंबी कहानी है, पर मैं शॉर्ट में बता दूंगा. जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए C, D एंड E होता है. कल्चर होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है और एंगेजमेंट होता है. तो उनका क्या था कि जो प्रोडक्ट कैटेगरी में पहले स्विच गियर में थे, स्विचेस में थे, वायर और केबल में थे, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किया. हम पंखे में आए, अप्लायंसेस में आए, वाटर हीटर्स में आए, वाटर लिफ्टिंग पंप में आए, पर्सनल ग्रूमिंग में आए और वाटर फिल्टर्स में आए, ऐसे लाइटिंग में हमने किए. तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करते रहे तो उससे जो है ग्रोथ आती रही. दूसरा, एंगेजमेंट और टीम के साथ रिलेशनशिप उनकी बहुत स्ट्रांग थी. और हमने 4 चीज़ों पे काम किया. एक तो जितना पैसा कमाया री इन्वेस्ट किया इनटू दी मैन्युफैक्चरिंग. दूसरा, हमने ब्रांड बिल्डिंग पे पैसा लगाया. तीसरा, हमने डाइवर्सिफिकेशन किया प्रोडक्ट में. आज हमारे पास में 20 प्रोडक्ट कैटेगरी है. इस पेंडेमिक के टाइम पर अगर एक प्रोडक्ट नहीं चलता तो दूसरा प्रोडक्ट चल जाता है. आज पर्सनल ग्रूमिंग जो हमारी जो अब घरों की नीड हो गई, जैसे आपने बियर्ड रखी हुई है तो आप अगर बार्बर पे नहीं जा रहे तो खुद ही ट्रिमर से यूज कर सकते हो. तो कई बार प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है.
देखिए रिलायंस जो शुरू हुआ था विमल से हुआ था, शूटिंग से। आज विमल शूटिंग कहाँ एग्जिस्ट करती है आपको पता भी नहीं होगा। तो चौथा हमारा आफ्टर सेल सर्विस पे पुश रहा। तो आज हमने जो सब कुछ किया वो सब लोग कॉपी कर रहे हैं, बट इसमें बहुत टाइम लगता है सर। 58 से लेके आज का जो टाइम है, पर पिछले 15 साल में कंपनी की ग्रोथ जो 400 करोड़ से 10,000 करोड़ की हुई है, वो एक बहुत फास्ट ग्रोथ थी और वो एक रिमार्केबल थी। और उसमें आई गिव ऑल द क्रेडिट टू लेट श्री कीमत राय गुप्ता दैट ही वाज ए विजनरी। गट फीलिंग थी, उन्होंने लोगों पे बिलीव किया, लोगों को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दिया। हमारे यहाँ 10 फैक्ट्रियां हैं, तो वो कभी भी किसी फैक्ट्री में साल साल तक जाते ही नहीं थे। जिन लोगों को अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई आप काम करिएगा, तो उनको टोका टाकी के बिना काम करने के लिए इजाजत दी और इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, ब्रांड बिल्डिंग में पैसा लगाया और एक गट फीलिंग के साथ काम करता है। मैंने कहा ब्रेन जो है ना, वो लेफ्ट साइड का ब्रेन कभी भी आपको सही सलाह नहीं देगा। ये तो राइट साइड का ब्रेन जो इरेशनल है ना, वही आपको गट फीलिंग बताता है कि क्या फीलिंग आपके आ रही है। इसलिए मैंने कहा इफ योर माइंड कैन कंसीव इट एंड योर हार्ट कैन बिलीव इट, देन ओनली यू कैन अचीव इट। पर कई लोगों का माइंड कंसीव करता है, हार्ट मानता ही नहीं है, तो इसीलिए वो फॉलोअर ही रहते हैं। एंड वर्ल्ड में सर 5% लोग ही हैं जो लीडर बनते हैं, बैलेंस 95% फॉलोअर ही रहते हैं। उन्हीं के लिए नौकरी करते हैं। हाँ सर, यस सर, सर सर, व्हाट डू यू वांट सर, सर सर करके उनकी जो है 60 साल की उम्र निकल जाती है। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Mayank. That was a very nice question. Avinash, can we have you please for your question? Avinash. Thank you, sir. A very good evening, sir. Welcome to the Amity University, Patna. This is Avinash Kumar Dubey from MBA third semester. Sir, my question to you is, sir, as we are going from this pandemic situation for a very long period of time, and COVID has disrupted economy badly, companies are getting shut. So how can a manager or a leader manage this situation and lead effectively? देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि कोविड की सिचुएशन एज ए बिजनेस इंप्रूव हो गई है। बिजनेस हैज बैक टू द ट्रैक। हमारी जो कंपनीज की अगर आप बैलेंस शीट उठा के देखेंगे किसी भी कंपनी की, तो वो सब कंपनियां बैक ऑन ट्रैक हैं। जो बहुत छोटी कंपनी थी जहां उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो इफेक्टेड हुई हैं क्योंकि लोग इधर उधर चले गए। बट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था वो अभी बैक ऑन ट्रैक है। तो इंडियन इकोनॉमी इज बैक ऑन ट्रैक और ये जो क्वार्टर के भी जो आ रही है जीडीपी ग्रोथ, वो भी ठीक आ रही है। तो आई थिंक सो हमें उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहिए कि अभी है। बट एक क्वेश्चन कर रहा हूँ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें सबको कॉशियस होना चाहिए कि हमें घरों पे रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, जहाँ जरूरी है वहीं जाना चाहिए। तो आई थिंक थिंग्स आर बैक ऑन द ट्रैक। और एक इस पैंडेमिक में या किसी भी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने जैसे बताया कि कल्चर आपका अगर सही है और आपका एंगेजमेंट लोगों के साथ है। आज हम कनेक्ट क्यों हो रहे हैं? आज मैंने देखा वेबिनार में 400 लोग हैं। आज सभी एंगेज हो रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। अभी क्यों किसी के पास सुबह, मैंने देखा डॉक्टर विवेकानंद जी सुबह 10 बजे से शुरू हुए थे और आज शाम को 6 बजे का टाइम है, पर फिर भी 15 मिनट और एक्सटेंड करके इतने फ्रेश बैठे हैं जितने सुबह 10 बजे बैठे थे। मेरे को इनसे सीखना पड़ेगा कि कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Avinash. And I think we can take one last question, sir, with your permission. ठीक है। Anil sir, can we take one? जी last okay, question. So, Shaili, can we have you here with your question, please? Shaili. Good evening, sir. Good evening, Shaili. Welcome to Amity University, Patna, sir. I'm Shaili from MBA department. जी. Sir, my question to you is, can an individual be a good leader despite of the power he or she holds when he is at a position? In spite of? All the power he or she holds of his position. Power. I once heard the Anand Mundra speech. He is passed out from Harvard Business School, and he explained Harvard Business School HBS in the right way. He says H stands for humility, which is inversely proportionate to the college from where you pass. Because if you pass from IIT IIM, you always have a tag at your head that you are an IIT or IIM. So humility is required as a leader. Second is the brevity, that you should speak less and allow people to speak, and you should be a good listener. And S stands for self-awareness or situational awareness.
We should respond to a situation rather than react to a situational. आज पेंडेमिक है तो हमें इस सिचुएशन को सहना पड़ेगा, हम इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते और घर से रेवोल्यूशन होकर नहीं कर सकते कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और मैं स्कूल जा रहा हूँ और मैं बाहर जा रहा हूँ. तो आई थिंक ह्यूमिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. लीडर में अगर दिमाग में उसके पावर चली जाएगी तो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाएगा. आज देखिए किंगफिशर हो और चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो सहारा ग्रुप हो, यहाँ जितनी आज चाहे नोकिया है, ब्लैकबेरी है, इन लोगों के पास में दिमाग में एक ये चल रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ उससे अच्छा कोई कर नहीं सकता. तो इसीलिए वो फिर लोग नीचे देखना ही बंद कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनमें फेलियर आना शुरू हो जाता है. एंड विवेकानंद जी, बिफोर आई कंक्लूड, मैं बोलना चाहूँगा, वो कहते हैं जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है. जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है. फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है और कोई किसी का दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है. हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है. जी लो तो जिंदगी और खो दो तो यादें हैं. तो जिंदगी को एवरी डे लिव लाइक कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको जीना चाहिए. खुशी खुशी जियो. रो के पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करके, एनवायरनमेंट को क्रिटिसाइज करके, सिचुएशन को क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं होने वाला. आप खुद पॉजिटिव हैं तो सब पॉजिटिव है. खुद अगर आप नेगेटिव हैं तो लोग आपको नीचे खींचने के लिए तैयार बैठे. थैंक यू सर. Thank you, Shaili. Thank you so much. Compassion, commitment, courage, vision, accountability, encouragement, responsibility are a few traits of a leader like you, sir. On behalf of Amity University, Patna, I extend a heartfelt gratitude for your kind presence and the meaningful insights that you have shared. Sir, we look forward to further association to strengthen the industry and academia connection. Thank you so much, sir. Finally, I thank Honorable Vice Chancellor, sir, and respected Pro Vice Chancellor, sir, for guiding us to execute this event so seamlessly. Thank you all, our esteemed attendees, for your lively participation. And that was the last session of the day. Thank you so much. Have a good night. Thank you. Kunal, we should also thank our IT team who is with us from morning 10 o'clock till now, who has really been helping us in executing each and every session. So we should also thank them. Basin sir, from core of our heart, I would like to thank you, because I was present in all the sessions, but I am sure the kind of connect you established with the students, it was really great. And we would like to request you that whenever you have time in future, we would be connected with you, and I'm sure my student will always love to listen to you. And we are really thankful to you, sir.